Hello and good morning, dear students. In our previous class, we have completed chapter number 11th of business studies, right? We have completed marketing management. Now, here I am having a file of some important contents of this chapter. Have a look. You are supposed to note down few things in your fair register also. Some definitions related to this chapter are given. Almost each and every definition is covered over here. Have a look. Definition of market, definition of marketing, then marketer, then different marketing management philosophies are given. Then the meaning of marketing mix, branding, brand, brand name, brand mark, each and every definition is covered in this part. So first of all, you have to write all these definitions in your fair register. Okay. After noting down the definitions, have a look on clue words. You need not to write these clue words in your fair registers. What you are supposed to do is you have to go through the keywords. देखिए क्या क्या है, जैसे कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कंट्रोलेबल है? तो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. All the four components we can control the components: product, price, place and promotion. ऐसे ही बहुत सारे. The part of brand which can be spoken, it is known as brand name. बेटा ये सारी चीजें केस स्टडी में आपको बहुत हेल्प करेगी. एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन कौन से कंसेप्ट में यूज किया जाता है? इन सेलिंग कंसेप्ट. So these are the things you are not supposed to write in your fair register, but you must keep this file with you. Okay. So after these keywords or clue words, some key concepts are given. Again, you have to note it down in your fair register. Features of marketing, क्या क्या चीजें आती है, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, the 4 points. Then you are not supposed to write these marketing philosophies, क्योंकि ये हमने पहले कर लिया. Definition में हमने हर philosophy के बारे में लिख लिया होगा. इस पेज में ये first part थोड़ा सा blur है, try to adjust. Then after the functions of marketing, headings लिख लीजिएगा. फर्स्ट फंक्शन के साथ लिख लीजिएगा SWOT एनालिसिस. ओके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, द 4 कंपोनेंट्स यू मस्ट राइट डाउन. एंड देन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग. आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एडवांटेजेस दी हुई है, मीनिंग नहीं दिया हुआ क्योंकि वो हमने डेफिनेशन में लिख लिया होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, वी हैव कवर्ड इट विद आवर वर्क. लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, functions of label, factors determining prices explained in detail. You must write it in your fair register also. And then after the key decisions of physical distribution, कौन से, ये भी आपको MCQ में पूछ सकते हैं. What are the 2 key decisions involved in physical distribution? तो एक तो हमें physical movement के बारे में decide करना है और एक हमें decide करना है the channel of distribution which we will be adopting. Then types of channels बहुत अच्छे से दिया हुआ है. And then components of physical distribution. At last, the 4 components of promotion mix. Then features of advertisement and then features of personal selling. Right? तो ये आपको अपने fair register में note down करने हैं for chapter number 11. So here we have discussed the key points which you need to note down in your fair register. Now we are going to discuss some important matchups and assertion and reason based questions for this chapter. Have a look everyone. Maximum problem जो आप लोगों को आ रही है या जो बच्चों को आ रही है वो है in the assertion and reason based question. तो आज स्पेशली कुछ important questions आपके लिए लेके आई हूँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं. पहले मैचअप्स डिस्कस कर लेते हैं, नहीं पहले assertion reason ही ले लेते हैं क्योंकि these are something जो आप खुद भी कर पाएंगे. Have a look everyone. 6 match the following questions थे. Now there are some assertion and reason based question. चारों ऑप्शंस पढ़ लेना, कोई जरूरी नहीं हो हर बार ऑप्शन वही दिया जाए जो मैं आपको गूगल फॉर्म टेस्ट में देती हूँ. राइट? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सेंड मी द आंसर्स इन चैट बॉक्स. द चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. Assertion is given, marketing is merely a post production activity. It means assertion is saying that marketing is an activity which starts after production. Reason is given, it only includes the activities that are performed after the goods have been sold. It means marketing includes only those activities which are performed after the selling of goods. Now you have to check the correct answer. Both statements are correct and reason is right explanation of assertion. Both are correct, but R is not correct explanation of A.
Third option is A is correct, but R is incorrect, and fourth is both are incorrect. What do you feel? Give me the answers in chat box. I'm waiting for your answers. Okay, the answer of Manish is देखते हैं. Yes, Garv's answer is correct. Garv has given the correct answer. Manish, give it one more try. What about the other students? Have a look. सोचिए, पहले इस फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए. जब भी असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट, क्योंकि ये ट्रू है या फॉल्स है उसी पे आंसर बेस्ड है. मार्केटिंग इज अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी. पोस्ट प्रोडक्शन है क्या, ये बताइए. व्हाट डू यू फील मनीष? पोस्ट प्रोडक्शन यानी ये प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है. टेल मी. यस मैम. यस. तो क्या आप मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च नहीं करते बेटा? बताइए. अच्छा मैम, हाँ वो भी फंक्शन होती है. वो भी फंक्शन होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है मैम. ट्रू है. फॉल्स है. देखिए, मार्केटिंग पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है. यही मिस्टेक होती है. इट मींस हमारे कंसेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है बिकॉज मार्केटिंग स्टार्ट्स इवन बिफोर प्रोडक्शन. ये कब पता चलेगा? जब आप पांचों फिलोसॉफीज को डिटेल से पढ़ोगे. तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. 1 इनकरेक्ट है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी. तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया. 1 इनकरेक्ट है. 2 को देखते हैं. 2 कह रहा है कि मार्केटिंग में सिर्फ वो एक्टिविटीज आती है जो सेल्स के बाद होती है. बिल्कुल भी नहीं. मार्केटिंग में तो सभी एक्टिविटीज आ जाती है, प्रोडक्शन से पहले की, बाद वाली, ईच एंड एवरी एक्टिविटी. मुझे बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? सबको समझ आ गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्यों करेक्ट है ये भी समझ आ गया. आगे देखिए. गिव मी अ सेकेंड. ओके, सेकेंड वन. मार्केटिंग इज नॉट merely a business phenomenon. Marketing activities are relevant to profit making organizations only. सोचिए, ये कह रहे हैं मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस फिनोमिनन नहीं है, और सेकंड में ये कह रहे हैं मार्केटिंग सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही होता है. यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं. नाउ यू हैव टू चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. No, I haven't received any correct answer till yet. Think upon it. पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपको स्टेटमेंट 1 करेक्ट लग रही है क्या. बिल्कुल सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट. मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस फिनोमिनन नहीं है. बट ऑप्शन 2 तो देखिए जरा. मार्केटिंग एक्टिविटीज आर रिलेवेंट टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ओनली. ये बात बिल्कुल सही है बेटा. मार्केटिंग मींस अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना. जहां कमी रह रही है वो है बुक रीडिंग में और बुक के वर्ड्स को रीड करने में. ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऐसा क्यों, समझिए पहले. फर्स्ट बिल्कुल सही है, सिर्फ बिजनेस फिनोमिनन तो नहीं है, लेकिन ये भी ट्रू है कि ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है. अब ये कहाँ पढ़ा हमने? ये हमने पढ़ा है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, और उस मार्केटिंग कंसेप्ट में पढ़ा है डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट. मार्केटिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है वो भी हमने पढ़ा, और वो सभी चीजें हमें प्रॉफिट पे करनी होती है ये भी हमने पढ़ा. तो ये बिल्कुल ट्रू है. प्रॉफिट सिर्फ बिजनेसमैन अर्न करे ये जरूरी नहीं है. ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना है. नेक्स्ट देखिए. Our decision to buy a product is only affected by its physical qualities. When a person buys a car, he is just buying a means of transport. सोचिए, आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट कीजिए. क्या आप किसी प्रोडक्ट को सिर्फ फिजिकल क्वालिटी से देख के खरीद लेते हैं क्या? कोई कपड़ा देखने में अच्छा है, अब टच करके हमने फील ही नहीं किया, या फिर कोई बॉटल, हमें माजा की बॉटल अच्छी लग रही है इसलिए देख लिया, फिजिकल क्वालिटी है ना, बाकी चीजें चेक ही नहीं.
तो क्या ऐसा होता है? क्या आप जब कार परचेज करते हैं तो सिर्फ उसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए परचेज करते हैं, या कार की और भी बहुत सारी चीजें, लुक्स, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीजों को चेक करते हैं? ये आपको सोचना है, ठीक है? तो बिल्कुल बोथ ही स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स हैं। हम सिर्फ फिजिकल क्वालिटी नहीं देखते, हम प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। और कार भी सिर्फ हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं खरीदते। हाँ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेन पर्पज है, बट उसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखना होता तो कलर पे कभी फोकस ही नहीं करते, बट हम तो करते हैं ना। तो ये बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग इज एन इनफ्लेक्सिबल टूल। इनफ्लेक्सिबल यानी कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सोचिए, क्या आपने पूनम गांधी में कहीं इसको पढ़ा है क्या? क्या किसी को याद है? एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग के डिफरेंस बिटवीन में ये पॉइंट आया है दैट एडवर्टाइजिंग इज इनफ्लेक्सिबल। इट मींस स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है। नाउ द मैसेज इन एन एडवर्टाइजमेंट कैन बी एडजस्टेड टू द नीड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर। क्या आप एडजस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तभी तो ये इनफ्लेक्सिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इनफ्लेक्सिबल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट में करेक्शन नहीं कर सकते। द मैसेज इन एडवर्टीजमेंट कैन नॉट बी एडजस्टेड आएगा, कैन बी एडजस्टेड ट्रू नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, मार्केटिंग इज नॉट मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन। अब ये ट्रू है, नॉट मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन यानी सिर्फ एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। It includes many activities that are performed even before goods are actually produced and continue even after goods have been sold. इसका करेक्ट आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताइए। What according to you will be the correct answer of question number 5? बिल्कुल सही, गर्व एंड नीरज have given the correct answers. What about the other students of class? क्या ये merely viewers हैं? अवंत, हिमाक्षी, खुशाल, मनीष, नीरज, राजवीर, शिवेंद्र, विशाल, लक्षिता, यशवर्धन एंड अदर स्टूडेंट्स, क्या आप मेयरली क्लास में गेस्ट बन के आए हैं, क्लास में बाकी बच्चों को देखने के लिए? यस, हिमाक्षी हैज आल्सो गिवन मी द करेक्ट आंसर। खुशाल हैज आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the societal concept of marketing is the extension of marketing concept. ये कह रहे हैं societal concept marketing concept का ही एक step ahead है, extension है। क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं तो एग्री करती हूँ। It pays attention to social, ethical and ecological aspects of marketing. मार्केटिंग के अदर एस्पेक्ट्स पे भी ये फोकस करता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो ये उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया है करूंगी, उसमें हो सकता है 1-2 आंसर रॉन्ग हो, आप करेक्शन कर लेना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। क्या लगता है आपको, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है क्या? I feel yes. Next, it is a process whereby people exchange goods and services for money or something of value to them. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग एक्सचेंज करते हैं अगेंस्ट मनी या फिर ऐसे किसी भी चीज के अगेंस्ट जो उनके लिए वैल्यूएबल है। तो बिल्कुल सही बात है ये। बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, यहां तक एनीवन, एनी डाउट? Okay, next one. The job of marketer is to add to the value of product so that the customers prefer it in relation to competing products and decide to purchase it. अब ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी है बेटा, आपकी पूनम गांधी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये सबसे खास बात है। ये एग्जैक्ट सेम टू सेम स्टेटमेंट हमने पढ़ी है कि बिल्कुल सही बात है। मार्केटर की जॉब होती है कि वो अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करे सो दैट the customer prefer the product against the product of competitor. अब रीजन में जो दिया हुआ है वो पढ़िए जरा।
The product will be purchased only if it is perceived to be giving minimum benefit or value for the money. मिनिमम वर्ड लिख दिया, क्या हम वो चीज खरीदते हैं जिससे हमें मिनिमम वैल्यू मिलता है, बताइए, या वो खरीदते हैं जिससे मैक्सिमम मिलती है? करेक्ट आंसर सेंड कीजिए. Yes, Manish has given the correct answer. Very good. Assertion is true but reason is false. Assertion तो correct है लेकिन reason जो है वो incorrect है. हम maximum benefit वाला सामान purchase करते हैं, ना कि minimum benefit वाला. तो अब assertion reason questions हो जाएंगे. क्या लगता है? ये फाइल मैं आपको आज सेंड करूंगी. Other than this also I have forwarded you one more file previously. राइट, वो भी आप अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. आफ्टर दिस आई विल बी सेंडिंग यू अ फाइल ऑफ सम एमसीक्यूज आल्सो. आगे देखिए. द सोसाइटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ, ये तो ऊपर आ गया था स्टेटमेंट, एक्सटेंशन है, ये तो बिल्कुल सही बात है. आगे क्या कह रहे हैं? इट ओनली सीक्स टू फाइंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स एंड फिल देम, बट सॉरी, इट नॉट ओनली सीक्स, ये सेम ही है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बोथ आर करेक्ट होगा. नाउ अ ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव. आप तो ये देखिए पहली स्टेटमेंट ट्रू है क्या? बिल्कुल, ब्रांड नेम तो डिस्टिंक्टिव ही होना चाहिए, दूसरों जैसा तो होना ही नहीं चाहिए. आगे रीजन में क्या कह रहे हैं? इट हेल्प्स द कस्टमर टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर. अगर ब्रांड नेम डिस्टिंग्विश्ड होगा, डिस्टिंक्टिव होगा, तो कस्टमर को हेल्प होगी, वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएगा, दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर पाएगा. बताइए क्या करेक्ट आंसर है? क्या स्टेटमेंट 1 और 2 एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशंस है? इज दिस रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion? व्हाट डू यू फील? आई फील यस, राइट. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. आगे देखिए क्वेश्चन 11. पैकेजिंग फैसिलिटेट्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ये बोल रहे हैं पैकेजिंग की वजह से भी कस्टमर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर पाता है, तो बिल्कुल सही बात है. रीजन, पैकेजिंग प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज, लीकेज एक्सेट्रा. अब मुझे ये स्टेटमेंट तो दोनों सही लग रही है, लेकिन क्या सेकंड स्टेटमेंट यानी रीजन assertion का ट्रू एक्सप्लेनेशन है क्या? बिल्कुल नहीं, लेना देना ही नहीं है दोनों का. पहला पॉइंट कह रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो पाएगा, और दूसरा पॉइंट कह रहा है पैकेजिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. तो अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ होता पैकेजिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्रोडक्ट, और फिर ये रीजन दिया हुआ होता तो सही होता, बट यहाँ पे ये रीजन इस फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी. बोथ assertion and reason are correct, but this reason is not a correct explanation of assertion. फिर की तरफ the product and specify its content. कुछ भी घुमाया हुआ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन. लेबलिंग प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसके कंटेंट्स को इलाबोरेट करता है, बिल्कुल सही बात है. रीजन देखिए. A popular brand of shampoo comes in different categories for different hairs like dry hair and for other categories. बात तो ये भी सही है, लेकिन पहले वाली बात दूसरी वाली बात से लिंक नहीं होगी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी. बिल्कुल, वेरिएबल कॉस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में हमने पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है. नाउ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी. ये कह रहे हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. ऐसा नहीं होता, कुछ वेरिएबल कॉस्ट ऐसी होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती. जब आप फर्दर एक्टिविटीज बढ़ाते हो तो इनका पर यूनिट रेशियो जो होता है वो कम होता जाता है. ये आपने पढ़ा था क्लास 11th की कॉस्ट वाले चैप्टर में, राइट. तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट नहीं. एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैसेजेस. बिल्कुल सही बात है. इन एडवर्टाइजिंग द कॉस्ट पर पर्सन रीच्ड इज वेरी लो. ये भी सही बात है, लेकिन दूसरी वाली बात फर्स्ट वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही, राइट. तो दोनों सही है, बट स्टेटमेंट ट्रू इज सॉरी रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है. अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, कुछ मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर रखे हैं, आप उनको देखें. ये जो मैचअप्स हैं इनको भी जरूर देखें. जैसे देखिए बहुत सिंपल, अब ये मैचअप्स आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है. एग्जामिनेशन में ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में आपको मैचअप जरूर देंगे, तो आपको प्रिपरेशन जरूर करनी है इनकी.
बस ये वाला पोर्शन आप आज रीड कर लीजिएगा। फाइल्स में आप सबको फॉरवर्ड कर दूंगी अभी आपके ग्रुप में। इज इट ओके टू एवरीवन? कल डिस्कस करेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडीज रिलेटेड विद दिस चैप्टर। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।